So Steve Jobs said you should do what you love. Approximately 1.5 million people appeared every year in an IIT. The Delhi IIT. IIT लोग सोचते हैं कि आईआईटी में जाके प्रेशर नहीं होगा. universities are islands of ignorance. Kavi Seth is probably an example of so many people who really want to pursue their passion or their heart. Music is a very indecisive field and you should have a degree with you. ये एक कवि हैं, गायक हैं, गाने लिखते भी हैं. Maharashtra Chief Minister he awarded you one of the most talented upcoming musician. बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ कवि जी IIT में अब मान के वो म्यूजिक कर रहा है तो रिएक्शन क्या आया और आपने उसको कैसे हैंडल किया? जो दिशा और दशा देती हैं वो दो चीज़ें हैं, एक है आपकी आरज़ू, दूसरा है आपका डर. आप बहुत बड़ा पॉइंट टच कर रहे हो. कॉर्पोरेट में हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. You said कि I would like to have a freedom of composing my kind of music rather than my music get driven through a music label. अब लेबल्स आ गए तो लेबल्स बोलेंगे कि नहीं हम बताएंगे कि आपको कैसा गाना बनाना है. आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में जो है हम वो सब कर सकते हैं. So how you see music in an era of AI? AI is actually challenging artists to be more genuine, to be more human, to be more expressive. A.R. Rahman and Hans Zimmer have been tied up for Ramayana music. Coldplay performed in India. Why Bollywood music is still not going global? तो एक चाचा है, उन्होंने बोला ये क्या बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो? मैंने कहा क्या मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ. आईटी से पढ़े हैं, म्यूजिक में हैं, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? So ये नूरी कैसे इन्वेंट हुआ और इसका ख्याल कहाँ से आया आपको? आपने हिंदी में आपकी एलुमनाई में स्पीच की और लोगों ने बोला ये कौन ऑड मैन आउट है और फिर आप यू गेट डिस्टर्ब और आप जब गए तब आपने एक गाना लिखा और वो गाना पॉपुलर हुआ. जैसे इंडिपेंडेंट कल्चर की नींव है अभिव्यक्ति. भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है मगर जगह नहीं है. 20 years back when you talk about career in India, it's more about engineering and medical, and getting into IIT was a dream and is a dream for so many people. But meeting Kavi Seth, we realized that that is possible in current day also. An engineer from an IIT who studied in 2015 left IIT and started his journey into the music. Kavi Seth is probably an example of so many people who really want to pursue their passion or their heart, but naturally remain confused because of the social pressure, peer pressure, lot many fear and the perception which they carry in mass. We welcome Mr. Kavi Seth on this podcast. Thank you. And we listen to him, what was his IIT days, what problem he faced, what was his state of mind and how he overcome all those challenges and issues and today is living the way he wanted to live. According to him, the biggest thing in life is to have a freedom of living the way you want to live and doing what you want to do. So let's see his journey. So Welspun, as a group, we believe that no, we should serve society and we should try to highlight the people who are like you, who have a dream, who want to chase their dream, but social pressure, peer pressures, friends, lots of theory established by lots of people block them from pursuing them. So we start first with what is IIT. So when we talk an IIT, और एक तकलीफ होती है कोई भी सोसाइटी में कि जो चीज़ आपने देखी नहीं है वो आपको अट्रैक्ट बहुत करती है. सो ये देश को IIT बहुत अट्रैक्ट करता है, ये देश को IIM बहुत अट्रैक्ट करता है. फॉर्चुनेटली आई हैव बीन विजिटिंग इन IIM, सो आई अंडरस्टैंड IIM, बट आई हैव बीन नॉट टू एन IIT. सो लेट मी अंडरस्टैंड IIT फ्रॉम योर साइड. सो व्हाट इज IIT? मैं अपनी दृष्टि से बता सकता हूँ कि मेरे लिए IIT क्या था. बहुत ही मज़े की बात है. 7th क्लास में था मैं, पहली बार टॉप किया था मैंने स्कूल में. मैं यूज्ड टू बी इन टॉप 3 वगैरह. ये अब तो बिल्कुल मजाक लगता है मुझे ये ऐसा कहना, बट मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा तू बड़े होके क्या बनेगा. उसने मुझसे पूछा तो मैंने बोला मैं जाऊंगा यार साइंटिस्ट बनूंगा, नासा ज्वाइन करूंगा मैं. अच्छा. ऐसा. और मैंने पूछा तू क्या करेगा? उसने बोला मैं यार IIT ज्वाइन करूंगा. अच्छा, 7th स्टैंडर्ड में? हाँ. मैंने IIT क्या होता है? तो उसने बोला सारे समझदार लड़के वहीं जाते हैं. तो ये परसेप्शन था कि सारे समझदार लड़के वहीं जाते हैं. हम तो मैं तो तेरे से ज्यादा समझदार हूँ. तो मैंने बोला कि मेरा ज्यादा बनता है जाने का. तो मैं भी जाऊंगा IIT. तो ऐसी नादानी में मैंने घर पे आके बोला कि मैं तो IIT जाऊंगा और सब लोग खुश. बोला कि तो अपने आप ही बोल गया. और मेरे डैड भी इंजीनियर थे तो वो तो बड़े खुश थे कि ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ. अब एक जो बात है कि समझदार क्या होता है, होशियार क्या होता है, ये वहम मुझसे बाद में छूटे. कि हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट मेरिट इज अ मिथ. ये तो मुझे समझ में आ गया. मतलब बस ये होता है कि आप इनेबल्ड हैं या नहीं इनेबल्ड हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं बताता हूँ कहाँ पे इनेबल्ड की बात है. यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरे डैड की तरफ से. मतलब वो ये है कि मेरे पिताजी ने कुछ ऐसी चीज़ मुझे बताई थी जिसने मुझे बहुत हेल्प करी अभी तक.
और मैं वो शेयर करना चाहूँगा, मे बी किसी तक नहीं पहुँची वो बात। तो मेरे डैड भी बहुत ही सेल्फ मेड व्यक्ति रहे। उनके पेरेंट्स के पास पैसे ऐसे नहीं थे उनके फंडिंग में, एंड ही वाज द ओनली वन हु काइंड ऑफ स्टेप्ड अप एंड वर्कड फॉर हिज लाइफ। 3rd क्लास की बात है, मुझे वो स्कूल से लेने आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कैसा रहा स्कूल। तो मैंने बताया कि अच्छा था, बट मुझे एक डाउट था, मैंने मैथ्स टीचर से पूछना चाहा, मैंने पूछा लेकिन शी शट मी डाउन, मतलब उन्होंने चुप करा दिया सिट डाउन करके। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने सवालों से समझौता मत करना, अपने सवालों पे सवार रहना। मतलब हो सकता है कि उस सवाल का जवाब उधर ना मिले जहाँ तुमने किया, जहाँ आया वो, मगर सवार रहोगे तो तुम्हें कुछ जवाब मिल जाएंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। एंड दैट रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस, बिकॉज तब मैंने डर को नहीं आने दिया सामने। और अक्सर क्या होता है कि मतलब आप देखिए ना, जब आप डरते हैं तो आप बेवकूफ़ हो जाते हैं, मतलब आपसे कुछ भी होने लग जाता है। आप मतलब बेवकूफ़ कहना मतलब है आप होश खो बैठते हैं। तो जब आप मतलब नहीं डरते हैं, मतलब आप अपने सवाल पे सवार रहते हैं, तो आप सोचने लगते हैं तो आपको जानने को मिल जाता है, आप ज़्यादा जानकार हो जाते हैं और फिर आप में हिम्मत बढ़ती है कि मैं ऐसे जान सकता हूँ। और तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इनेबलिंग रही है मेरी, जिसमें परस्यूट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो कह सकते हैं बहुत ज़िंदा रही। और उसने मुझे बहुत जवाब खुद से मैंने निकाले हैं अपने लिए और निकालता आया हूँ। और मतलब बताइए 3rd क्लास में हो गया मेरे लिए, किसके लिए कब होता है मतलब। तो इसने मुझे बहुत मैं बोलूँगा कि मैं अपने सोच के साथ रहा, मैं नहीं डरा इन चीज़ों में। और मुझे लगता है इस वजह से मैं होशियार रहा क्लास में, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो। और मुझे लगा कि भाई IIT भी हो जाएगा, और IIT हो गया। मुझे यकीन भी था कि मेरा IIT हो जाएगा, मतलब मैं जिस तरीके से कर रहा था। IIT कैसा रहा? बहुत सारे असाइनमेंट्स होते, डेडलाइन होती है, और इतना हैवी होता है IIT, आई एम टॉकिंग इन्फ्लुएंस वाइज, कि वो कहीं पे लोगों की आइडेंटिटी लॉस्ट करवा देता है कि आई एम इन IIT। तो 12th के बाद बच्चा जाता है, वो कोई और होता है, 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है वो IIT ग्रेड हो जाता है। तो वो जर्नी कैसी रही आप? तो मैं उस पे आने से पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि IIT JEE के बाद मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि मैं IIT JEE तक तो बहुत ही मैंने स्लॉग किया, बहुत ही मैं तो बोलूँगा शोषण किया खुद का ही। मतलब वो ऐसा क्यों? साधारण नहीं है वो 2 साल आप बैठ के बिठा के आप PCM पढ़ें और प्रॉब्लम्स हर दिन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन और इट इज़ वेरी थ्योरेटिकल, इट इज़ लाइक माइंड, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं आप कंटिन्यूसली। आप उसको शोषण क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नेचुरल नहीं है वो, मतलब ठीक है शोषण भी एक तरह से नेचुरल है फिर अगर देखा जाए तो, बट मुझे याद है मैं अपने आप को बिठाए रखता था, मतलब रात भर कि मुझे ये पढ़ना है, और मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो जाती थी बहुत सरल तरीके से, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ऐसे वक्त आ गया था जब बर्नआउट्स हुए थे 12th में कि मैं एक पेज पे हूँ 5 घंटे से, और मुझे पता नहीं है कि मैंने पढ़ लिया है नहीं पढ़ लिया है। पर ये तो बहुत सारे बच्चों से आज भी होता होगा। हाँ, सबके साथ होता है। तो जब आप एक फियर में ग्रिप हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है पता नहीं अभी हुआ है नहीं हुआ है टाइप्स, तो वो बहुत ही बुरी साइड होती है वो, और हो जाता है वो। और उससे कैसे निकले कोई, मतलब क्या वो घर में इतनी इनेबलिंग कैपेसिटी है इसके लिए, और IIT तो बहुत कम लोगों के लिए होता है, तो कौन ही लोग हेल्प कर सकते हैं। और क्या होता है कि फिर एक्सपेक्टेशंस भी आने लग जाती हैं। मेरे साथ 12th में हुआ था, तो आई वाज ऑलरेडी लाइक अ सूटेबल बॉय फॉर IIT, मतलब बैक इन माय फ्रेंड सर्कल लगता कि हाँ भाई ये तो जाने ही वाला है IIT में, एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गए। हाँ, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे, कितनी मैच्योरिटी कहाँ होती है, इतनी मैच्योरिटी कि आप इन सब चीज़ों से डील करें? नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना होता है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट के साथ 2 साल गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर वो हो गया, लेकिन बट मैं बताता हूँ क्यों शोषण। जब JEE हुआ तो मैंने उसके बाद
मैं तो इतने टशन में था, मुझे लगा था कि बस मुझे यही देना है, ये बाकी ये ट्रिपल और ये सब नहीं दूंगा मैंने दिया था ये ट्रिपल दो, लेकिन उसके बाद मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिया था, पता कि हो गया अब बस। हाँ, यू हैड बर्न आउट बेसिकली। बर्न आउट भी हो रहा था कि हमने तैयारी IIT के लिए करी थी और चीज़ों के लिए नहीं करी थी। हाँ, और लेकिन जब वो हो गया एग्जाम तो मुझे था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं एकदम खाली हो गया। तो आई स्पेंट माई सेल्फ लाइक एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो अब्यूजिव। मूवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। एंड फिर मेरा एक दोस्त गिटार सीखने जा रहा था तो मैं उसके साथ हो गया, लाइक कुछ तो कर लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब मेरा मन भी था गिटार सीखने का, मेरा था कि कॉलेज, इनफैक्ट इट वाज आल्सो माय फादर्स ड्रीम, मतलब नॉट समथिंग दैट ही इम्पोज, लेकिन वो कभी कभार बोलते थे कि तू कॉलेज जाएगा तो बाल बढ़ाई हो, कान में बाली रखी हो, टैटू लगाई हो। फादर ये बोलते थे? फादर नॉर्मली उल्टा बोलते हैं कि भाई अरे बाल बढ़ मुझे गए कटवा दो। मुझे गर्लफ्रेंड अलाउंस देते थे यार, मतलब क्या बात करते हो, ये पहली बार हम लोग अनाउंस सुन रहे थे। मतलब वॉलेट में पैसे आ जाते थे, लगा अरे ये कहाँ से आए। तो मतलब उस वक्त कैफे कॉफी डे वगैरह जाया करते थे फर्स्ट ईयर में, तो लेकिन वो सब अलग बातें हैं। बट मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है और गिटार सीम्स लाइक अ गुड थिंग। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया उसके टीचर के पास, और वहाँ पे बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ। वही एक्सपीरियंस ने बहुत लाइफ को ऑफ ट्रैक कर दिया। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप 12th तक आप बहुत पढ़े क्योंकि आप IIT की तैयारी कर रहे थे। देन आफ्टर एग्जाम यू कंप्लीटली गॉट मेंटली रिलैक्स, यू स्टार्टेड डूइंग लॉट मेनी अदर एक्टिविटीज, जहाँ पे आप खाने जा रहे थे, मूवीज देखने जा रहे हो, और बीच में गिटार सीखने भी आप। मैं सोचा कर लेते ना, कब तक घर में बैठ के ऐसी। ओके, तो वहाँ पे आपका एक पहला म्यूजिक का एक्सपीरियंस? मुझे वहाँ पे अभिव्यक्ति का अनुभव हुआ। यानी अभिव्यक्ति एक ऐसी जगह है, जैसे अगर हम अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हमारी मुलाकात हो रही है, वो मिलने की जगह है। तो जब मैं खुद से अभिव्यक्त कर रहा हूँ तो मैं खुद से मिल रहा हूँ, है ना। मुझे मेरा स्पर्श हुआ, मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मिल गई है, मतलब IIT से भी बड़ी चीज़ है। कि आप देखिए स्कूल कॉलेज में अभिव्यक्ति की जगह नहीं होती है, कि मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं उसकी जगह नहीं होती है। वो क्लास मतलब नोटबुक के आखिरी पन्नों में हो जाएगी। दोस्ती इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वो हर बात को जगह दे सके। घर में भी आपको डर लगता है। A+ है, बाकी तो अभिव्यक्ति कुछ है ही नहीं, यानी सब अभिव्यक्ति एक ही चीज में बाहर आती है, A+ या 99%। हाँ, और दोस्ती इतनी परिपक्व नहीं होती, स्कूल में भी हर बात नहीं कही जा सकती, तो इतना बॉटल्ड अप होते हो आप लगभग कितने सालों से। और जब वो निकला, मतलब मुझे लगा कि ये, मतलब आपको स्कूल सिखाता है कि भाई दुनिया कैसे चलती तुम जानो, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, इसकी जगह ही नहीं बनती है। आप नोइंगली अननोइंगली जी कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हो, जिसने एजुकेशन को डिफाइन किया था कि एजुकेशन इज इनसाइड आउट, इट्स नॉट एन आउटसाइड इन। अपने आप को डिस्कवर करना वो एजुकेशन है, बाहर की इन्फॉर्मेशन को अंदर डालना वो एजुकेशन नहीं है, बट एजुकेशन अलग हो चुका है। तो आपको अभिव्यक्ति हुई म्यूजिक के जाने से। मुझे और फिर मुझे लगा कि ये तो द्वंद्व हो गया। मुझे लगा कि ये तो अभी IIT ज्वाइनिंग में थोड़ा वक्त है, लेकिन अब यहाँ तो कुछ बड़ी चीज़ मिल गई है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो अब ये करना चाहता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किताब से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि किताब मुझे कहीं किताब वो बोल ही नहीं रही है जो दुनिया बोल रही है, और ये पोएटिक लगता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो रहा था इस फीलिंग में। कवि जी, मैं अभी वही सोच रहा था कि आपका हिंदी, विल कम बैक ऑन द टॉपिक, सॉरी, आपका हिंदी बहुत ही शुद्ध है, मोर इम्पोर्टेंटली बहुत ही शांत है। इसका रीजन क्या है? इसकी वजह हो सकती है, लेकिन एक मेरे जहन में जो है वो 2013 में आती है। तो मैं एक पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व था। अच्छा। जो 2013 में शुरू हुआ था, और ये अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी वाला। मैं 13 से 14 वहाँ था, और उसने भी बहुत परिवर्तन लाया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी ज़बान अंग्रेज़ी ही थी, एकेडमिक अंग्रेज़ी, लेकिन हिंदी हम बोलते थे घर पे, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से ही हैं, और माँ भी MA है इन हिंदी। तो हिंदी तो मतलब इनफैक्ट हिंदी पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी। लेकिन जब मैं इधर गया, दिल्ली गया बॉम्बे से, बिटवीन माई IIT दिस हैपेंड ड्यूरिंग IIT? या वो भी बहुत ही एक सर्टेन मज़ेदार एपिसोड है।
बहुत टफ। अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में मज़ेदार बोलता हूँ। तो वहाँ पे जब गया तो मैं तब ज़्यादा बोलता भी नहीं था, मतलब मैं बहुत रिजर्व रहता था, लेकिन उधर था कि भाई जाके बात करनी है लोगों से, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो आप जाके बात करेंगे। बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बात करने की बात भी होनी चाहिए, बस ऐसी जाके बात करनी है। तो मुझे फिर बात करते करते बात करना एक तरीके से आया, और फिर ना मुझे नहीं पता था क्या बोलना, तो मैं सच बोलने लगता था कि जो भी मेरे मन में था, क्योंकि हम बहुत ही तब तक ये पॉलिटिकली मलाइन नहीं हुई थी। जो आइडिया कार्यकर्ता ना बहुत ही सुंदर ख्यालों में होता है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उस हिसाब से नहीं आई थी। हाँ, मतलब मैं तो बहुत ही अच्छे ख्वाब को जी रहा था उसमें। तो हम जाके उस ख्वाब को व्यक्त करते थे, भारत को बेहतर देश बनाने की बात करते थे, और अकेले नहीं कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे करके बात करते करते मेरी ज़बान लोगों की ज़बान होने लगी। बहुत अच्छा। और फिर तो वो होने लगी, और मेरा लिखने का मन बहुत था, क्योंकि मैंने म्यूज़िक करने लग गया था, लेकिन मैंने लिखना एक तरीके से शुरू हिंदी में इसी के बात करना शुरू किया, क्योंकि मेरी ज़बान ये होने लगी। मुझे कभी नहीं पसंद थे कि मैं किताब, जैसे जो लोग लिखते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप पढ़ा करो, लेकिन क्यों पढ़ा करो, उसकी वजह बहुत अलग हो सकती है लोगों के लिए। मुझे कभी नहीं पसंद था कि भारी शब्दों को इस्तेमाल करके आप बातों में वज़न लाएं, लेकिन उससे अक्सर मतलब उल्टा असर होता है। भारी शब्दों से आदमी कट जाता है, बात ही कट जाती है। बात में वज़न हो तो शब्द में वज़न आता है, और मतलब कि शब्द जितना जिया गया हो उतना उसमें वज़न होता है। तो मुझे ये था कि मैं अब जीने लगा था हिंदी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब फिर जब मैंने छोड़ दिया, वो वापस आया IIT, फिर मुझे नया हौसला मिला कि मुझे अगर संगीत को प्रोफेशनली करना है तो कैसे करना है। मुझे ये हौसला मिला कि मैं, और उसमें सॉरी बट उर्दू की इन्फ्लुएंस कहाँ से आई? मैं दिल्ली से हूँ, मैं मतलब तो दिल्ली की ज़बान एक तरीके से हिंदुस्तानी है। और देखिए, दिल जहाँ घर कर लेता है वहाँ की ज़बान और जायका अपना लेता है। तो मैंने उन दिनों दिल किसी पुरानी दिल्ली वाली को दे दिया था, तो मैं नॉनवेज भी हो गया था और उर्दू का असर भी ज़्यादा हो गया था। शायद लिखने का भी नहीं, लिखना तो था ही अपना, बस इम्पैक्ट बढ़ गया होगा। राइटिंग मस्ट बी मच स्ट्रॉन्गर देन आपका। शुरू तो हाँ, वो तो मज़ा ज़्यादा आने लग जाता है, और लिखना तो लग गया था मैं। और हाँ, तो जैसे कबीर जी को अगर आप बोलें तो कबीर की ज़बान क्या है, तो सदुकड़ी बोली जाती है। और मैं भी सोचता था कि मेरी भाषा क्या है, मतलब मेरी ज़बान क्या है। तो मेरी ज़बान मेरे देश की है, लेकिन मेरे देश कई लोगों से बना है। मतलब अब जिस वक्त मैं लिख रहा था तो उसमें मेरे कई दोस्त विदेशी भी थे। तो मेरी ज़बान मुझे मेरे देश से जोड़ती है। तो मेरे देश में अब कई देश आते हैं, और तो मेरी ज़बान ना अंग्रेज़ी है, ना रूसी है, ना फ़ारसी है, ना हिंदी है। मेरी ज़बान देसी है। मेरी ज़बान मेरे देश से मुझे जोड़ती है। तो क्या है कि हर ज़बान बदलती है। और बड़ी सुंदर बात यही है कि गांधी जी ने भी जब कल्पना करी थी राष्ट्रभाषा की, तो उन्होंने यही बोला था कि हिंदी नहीं होगी, और उर्दू तो खैर सवाल ही नहीं था। उन्होंने बोला था हिंदुस्तानी होगी। लेकिन उनका मतलब हिंदुस्तानी से बहुत अलग था। उनका मतलब था जैसे लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत अलग ज़बान बोलने वाले जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो शब्दों का आदान प्रदान होगा और एक कलेक्टिव भाषा बनेगी। जो तो बोले थे हिंदुस्तानी भाषा एक बोलिए जो बनती रहेगी, जो मराठी, पंजाबी, इन सब बोलियों से, गुजराती, इन सब से शब्द बोरो करके कुछ नया बनेगा। हाँ, हिंदुस्तान की भाषा। तो शब्द में, और आप कैसे उसको जी रहे हैं तो उसमें जाना दे आप। जैसे जब मैं रशिया गया था कॉन्सर्ट के लिए, तो मैं पुष्किन से रूबरू हुआ। तो कहा जाता है कि पुष्किन इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशियन लैंग्वेज। मुझे कभी पल्ले ही नहीं पड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति कविताएं ये सब तो लिख सकता है लेकिन जबान बना सकता है। फिर मैं सोचने लगा कि आप देखिए, गालिब को अगर पढ़ें, कबीर को पढ़ें, तो आपको दिखता है कि इनकी बातें समझ में आएंगी आपको, लेकिन उस दौर के और शायर जो उतने प्रचलित ना हो, लेकिन उनकी काव्य अगर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो ज़्यादा मुश्किल कठिन लगती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जो उन्होंने जिया, उन्होंने शब्दों में भाव
डाले, और भाव में बहुत शक्ति होती है। एक्सप्रेशन आप मैं समझ रहा हूँ आप जो बोलना चाहते हो। स्ट्रगल ये थी कवि जी कि आप आईआईटी में हो, आप एक जन आंदोलन में गए, भारत से मिल रहे हो, भारतीय प्रजा से मिल रहे हो, लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है हिंदी। आप ही ने बोला कि शब्द यूज किए जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, शब्दों से वजन नहीं आता है, वजन बढ़ाने के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। सो एक आईआईटी का बंदा है, who naturally would like to have a different control by using a language called English, which is more common language, और आपके कैंपस में भी वो एक अलग रहा होगा प्रभाव उसका। आप एक हिंदी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और कुछ भी बोलो, आपने सही एक बात बोली कि भाई पीपल यूज लैंग्वेज टू इम्प्रेस रादर देन टू कन्वे। तो ये स्ट्रगल हुई आपकी कि एक आईआईटी वाला है जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, आप शायद आपकी किताब, आपके सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में ही रहे होंगे लैंग्वेज, और एक बार जो आपका हिंदी पे प्रभुत्व और लगाव भी बढ़ रहा है, जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपने ये स्ट्रगल को कैसे हैंडल की? क्योंकि जब 95% ऑफ कैंपस इज यूजिंग अ लैंग्वेज इंग्लिश, और उसके अंदर आप आपकी हिंदी बोल रहे हो, तो उसमें वो 5% में जा रहे हो, वो कैंपस का रिएक्शंस, फ्रेंड्स के रिएक्शंस बहुत अलग आते हैं। आपने इसको कैसे हैंडल किया, और आपका क्या फील रहा उस टाइम पे? तो एक बात जो आपने भी करी, उस पे आकर मैं इस पे आता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि लैंग्वेजेस यूज टू इम्प्रेस। आप देखिए ना, कोई भी परफॉर्मेंस इम्प्रेस करने के लिए करी जाती है, लेकिन एक्सप्रेशन कभी इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया जाता है। एक्सप्रेशन से सीधा एक रिजल्ट होता है, वो है कनेक्शन। और हम आज का दौर ही ऐसा है जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप वाइज या कनेक्शन वाइज बहुत डिसफंक्शनल हो गया है। हम कनेक्शन वाइज बहुत पुअर है, और सिर्फ जीत, मतलब इसको मैंने ऐसे लगा था, है चलिए सब जीतने दुनिया, भले भाड़ में जाए दुनिया। यही हो रहा है कि हम जीतना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन दुनिया का क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो आप परफॉर्म करके जीतना चाहते हैं, सिर्फ जीतना चाहते हैं, मतलब साथ नहीं होना चाहते। ये बहुत नादानी है। कवि जी, वो नेचुरल है। जब आपके देश में कोक, पेप्सी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम आएगा, तो वहाँ का कल्चर भी यहाँ पे आएगा। बिल्कुल। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। बिल्कुल, लेकिन ये भी ख्याल नेचुरली है जो मुझे मेरे अंदर से आया। तो और सिर्फ मेरे नहीं है, मतलब कितने लोग बोल के गए हैं, आपको पता लगता है हाँ ये बोली गई है बात पहले। और जहाँ तक बात हिंदी की है, और तो इस पे तो बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि मेरे एलुमनाई की बुक लॉन्च थी, और मेरा रूमी भी मैंने देखा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शब्द चाटता था हर दिन, क्योंकि उसको कैट एग्जाम क्रैक करना था। कैट करनी होगी, बराबर। मुझे बहुत दुख होता था वो देख के। मतलब मुझे लगता था कि कब बड़े होंगे हम लोग। उनको आपको देख के दुख होता होगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। हाँ तो ठीक है, साझा दुख था। थियरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की। हाँ लेकिन ठीक है, मतलब मुझे दुख ये होता था कि भाई मैं यार क्या कर, मतलब किस लिए ये चीज़, अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे ये सब। और मैं जब गया था इस बुक लॉन्च में, मेरे एलुमनाई का बुक लॉन्च था, तब तक मेरी आईआईटी खत्म हो गई थी। और तो वो थी ऑन स्टार्टअप्स पे थी, द गोल्डन टैप करके, बहुत शानदार बुक है, मैंने पढ़ी। तो क्रॉसवर्ड में थी बॉम्बे के। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, तब तक मैं अब रम चुका था, मैं एक अलग ही मोमेंटम में था अपने सफ़र में, बहुत ही जोश और होश के साथ। तो उस वक्त सारे उपस्थित लोग भी मेरे बैचमेट सीनियर्स थे आईआईटी के। तो जब मुझे कुछ सवाल करना था, तो मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल कर लिया वहाँ पे। अब हिंदी में सवाल क्या कर लिया, सब लोग वहाँ पे माहौल जैसे भाई कि कौन है आप, कौन कहाँ से आ गया। हाँ, और इन लोगों तो मैंने देखा, ये सब मेरे सीनियर्स चड्डियों में घूमते हुए देखा है, मतलब ऐसी हॉस्टल में अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते हुए देखा है मैंने हॉस्टल में। वो सोफिस्टिकेटेड हो गए। हाँ, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा मुझे। और प्लस ये भी था कि मैं तो यार कॉर्पोरेट में नहीं हूँ, मैंने तो अब तो मैं तो अलग ही मस्ती में सवार हूँ, और मुझे भी सवाल करना है, तो मुझे थोड़ा छोटा सा महसूस होने लग रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं शायद जगह नहीं है मेरी, मैं चला आता वहाँ से। तो मैं चला गया वहाँ से, और फिर मैंने रास्ते में वो गीत लिखा था जो काफ़ी प्रचलित हो गया,
वही कि न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। ये म्यूजिक में शिफ्ट कब डिसाइड हुआ, कैरियर बनाने का प्लानिंग कब आया, या आईआईटी छोड़ना है? क्योंकि आपका कॉर्पोरेट प्लेसमेंट भी हुआ होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर आईआईटी का अगर एक स्टूडेंट है तो एवरेज 15 लाख रुपया सैलरी उसको 22-23 साल में मिल जाता है, तो ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अब वो छोड़ के आप वहां पे जा रहे हो जहाँ पे आगे कुछ डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल वो भी है, और प्लस उस वक्त आपको थोड़ा खुद पे भरोसा होता है, आपको होता है कि अभी मिल गया बाद में भी मिल जाएगा टाइप से। एक बिलीफ बढ़ता भी इनफैक्ट कॉर्पोरेट प्लेसमेंट से। तो आपका कॉर्पोरेट प्लेसमेंट हुआ था क्या? मैं बैठा था 2-3 ये वो भी इसलिए बैठा था कि मुझे बैठना भी नहीं था और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं बैठा था। तो थर्ड ईयर में आपको आईआईटी छोड़ना था? हाँ, तो थर्ड ईयर में तो छोड़ दिया था एक तरीके से, लेकिन वो बताता हूँ, मैं आता हूँ उस बात पे। तो मेरे डीन ने मुझे बोला था कि कविश डोंट बी क्रेजी, मतलब नॉट एवरीवन इज रहमान, म्यूजिक इज अ वेरी इनडिसाइसिव फील्ड एंड यू शुड हैव अ डिग्री विद यू, फिनिश दिस एंड देन थिंक व्हाट यू वांट टू डू। सडनली मेरा पूरा पर्सपेक्टिव टू लाइफ एंड एवरीथिंग चेंज्ड। उस वक्त तक मेरे आइडल स्टीव जॉब्स थे, हाँ उसके बाद नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता था कोई भी बड़ी चीज़ को करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, सिर्फ दिल की सुनो टाइप्स। बट फिर मुझे एक बहुत शानदार बात पता चली कि मतलब आदर्श और इन सबसे भी बड़ी चीज़ एक होती है, वो होती है परिस्थिति, सिचुएशन। हाँ, जो आपको मिलती है, और परिस्थिति ही आपका तोहफा भी है। परिस्थिति में ही आप कुछ करेंगे, परिस्थिति में ही आप कुछ नया बनाएंगे। आपके जैसे कोई आदर्श होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है, लेकिन आप वो कभी नहीं बनेंगे। आप वो जी के कुछ अपनी परिस्थिति को बदलेंगे और कुछ नया बनेंगे, और ये नया किसी और के लिए आदर्श बन जाएगा, वो भी बोलेगा मुझे ऐसे बनना है, लेकिन जो कुछ होगा आपकी परिस्थिति में होगा, और परिस्थिति ही आपकी ज़मीन है। उसको अगर हम ठुकराते हैं कि मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं तो अमेरिका में नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ, आपके साथ कुछ अनोखा होने वाला है। और दुनिया बड़ी क्रिएटिव, बहुत मज़ेदार जगह है, वो कभी भी चीज़ रिपीट नहीं करना चाहेगी। तो मैंने एक तरीके से पूजना शुरू किया अपनी परिस्थिति को, मतलब स्वीकारा कि मतलब अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी आईआईटी है, मैं आईआईटी में क्या कर सकता हूँ, लेट मी मेक आईआईटी माई फ्रेंड, लेट मी नॉट जस्ट कीप, मतलब आईआईटी ने मेरे लिए क्या किया, आईआईटी ने मेरे लिए क्या किया, यही कर रहा हूँ मैंने भी क्या किया आईआईटी के लिए। तो फिर मैंने जब अपना वो पर्सपेक्टिव बदला, वहाँ से आईआईटी बिकेम सच अ स्मूथ राइड एंड सच अ ब्यूटिफुल प्लेस मेरे लिए। मुझे दिखने लगा कि लोग अब कितने सपोर्टिव हो गए थे हर चीज़ को लेके, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई वुड हैव गॉन टू प्लेसमेंट्स। आई वाज लाइक कि मैं पर्सपेक्टिव चेंज हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। यस, एंड अभी भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी भी जिंदगी में, इसको पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कहते हैं लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी की जिंदगी में, कि आप कैसे आपके आधे प्रिंसिपल्स ये हैं, लेकिन अभी सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आप नहीं हिला के जा सकते, तो आप मैन्यूवर करेंगे, बहुत सही बात। आप थोड़ी ना अपना सर फोड़ेंगे और वो बहुत जरूरी चीज है, पॉलिटिकल मैनोवरिंग इन अ शॉर्ट टर्म टू अचीव योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सही है, और वो शायद लोग नहीं करते बिकॉज वहां पे थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच आ जाता है। तो वो उसको मैं नादानी बोलता हूँ, मतलब अब तो मैं तो समझ गया था वो नादानी है। आप बैठ के वहां पे क्या कर रहे हैं, आप बेचैन होते जा रहे हैं, और फिर आप हल्ला कर रहे हैं उसका, कोई और भी नहीं आपको यही बोलेगा तो निकल ले अभी यहाँ से, हो जाएगा आगे जाके। तो आपको ये देर सवेर आ जाती है बात समझ में कि अभी आप कर लें प्रदर्शन जो आपको करना है, कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, जो हो रहा है उसको पहले स्वीकारो और स्थिति को बेहतर करो जैसे कर सकते हो। सो कविश, देयर वर टू थिंग्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस व्हेन यू सेड I agree, situation and circumstances create people, which you said. And the second thing you said is Steve Jobs was our idol, and then of late you said मैं उसके बाहर आ गया. So what was that like? वही कि नहीं बिल्कुल, स्टीव जॉब्स एज एन आदर्श जो मेरे थे उस वक्त फिर पर्याप्त नहीं रहे मेरे लिए, मतलब एज अ पर्सनैलिटी तो ही इज अमेजिंग, मतलब जो भी है, बट उस वक्त मुझे ये लगा था कि, और ये कई बार हुआ मेरे साथ, जब मुझे समझ में आया कि परिस्थिति ही एक तरीके से भगवान है, यही आपको मिला है, और यही प्रिविलेज है आपकी परिस्थिति, यहीं पे आपको सब कुछ करना है, आपको अपने सपने भी यहीं बोने हैं, यहीं पे बो के वो परिस्थिति बदलेंगे जब वो उपजेंगे, तो सब कुछ यहीं होना है। तो वो चीज़
को सबसे पहले अपनाना है और उस पर काम करना है। तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो IIT बिकेम अ ब्यूटीफुल प्लेस मेरे लिए। सडनली ग्रेट थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। सडनली मैंने अपने आप को हर एक ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपन कर दिया जिसके लिए मैं क्लोज था। मैं लगता नहीं मुझे बस म्यूजिक करना है, ऐसा हो गया था मैं। मतलब नहीं अभी मुझे सब कुछ करना है, मतलब और मैं उस सब कुछ को कैसे एक सिंगुलर फॉर्म बनाऊंगा मैं देखूंगा, लेकिन अभी मुझे सब कुछ करना है। तो मैं जो म्यूजिक करता हूँ उसको मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बोलता हूँ, मतलब इसको इंडिपेंडेंट म्यूजिक बोलते हैं। लेबल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट में जाता है। हाँ, ये एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है इसकी, अपनी एजेंसी प्रैक्टिस करना। यूजुअली क्या है कि आप देखेंगे कि आर्टिस्ट एक लेबरर हो जाता है उसके पेट्रन का। तो मतलब उसको जहाँ पे परफॉर्मेंस करने के पैसे मिल रहे हैं, जो स्पेसेस मिल रहे हैं, वो इज बीइंग गवर्न्ड और बीइंग रन बाय अ सर्टेन एजेंसी, और आर्टिस्ट को कंफर्म करना है टू दैट एजेंसी एंड एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे ट्वीक्स एंड एक अलग टसल चलता है। बहुत सही है। अब लेबल्स आ गए तो लेबल्स बोलेंगे कि नहीं हम बताएंगे कि आपको कैसा गाना बनाना है, और आप ये गाना चलेगा, ये गाना नहीं चलेगा, थ्रू वेरियस रीजंस, बहुत सारी पता है ये चीजें। कौन सी स्ट्रगल है जो आपने बोली ना कि शब्दों में वजन बढ़ाया जाता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ये वही स्ट्रगल म्यूजिक लेवल में है अभी आपकी। हाँ, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कल्चर इज प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंट एजेंसी। सबसे पहली चीज उसका बेसिक वो है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, इंटरनेट से आया है, क्योंकि मैं अब ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ Correct. अपने आर्ट वर्क को। तो अब वो लेबल्स के एक वर्चस्व को चैलेंज कर सकता है, और चैलेंज क्या मतलब उसके साथ खड़ा हो सकता यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ लेबल ही कैन पुश हिज म्यूजिक, है। आप अब सस्टेन कर सकते हैं बेसिकली। वो बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा, बहुत हार्टनिंग भी है। तो मुझे ये लगता है कि फिर मैं जब ये सोचता था कि यार एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको उतना तो नहीं मिलता जितना मे बी एक बॉलीवुड आर्टिस्ट को मिलता है। करेक्ट। लेकिन तो फिर मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का मौका मिल रहा है, और ये सबसे एक्सपेंसिव होता है कि आप अपने मुताबिक जिंदगी जी सकें। अगर आप इसको कॉस्ट वाइज में देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एवर। तो आप पैसा तो लेंगे या जिंदगी को तो लेंगे? कौन ज्यादा मोल लगता है? मेरे जिंदगी लगती है, तो मैं कर रहा हूँ ये। ग्रेट। हाँ, किसी के लिए पैसा रखता है, पैसा करे, और दोनों हो सकता है तो क्यों नहीं, बहुत अच्छी चीज है। When you talk India as a country, Hans Zimmer comes to India, or A.R. Rahman and Hans Zimmer have been tied up for Ramayana music. Coldplay performed in India. Why Bollywood music is still not going global when so many competent global organizations and individuals are contributing to the world? Why Bollywood is still not becoming that global phenomena in terms of music composition I am talking? जितनी हद तक होनी चाहिए या हो सकती थी उतनी तक तो मुझे लगता है कि है। इस पे कई सारे फैक्टर्स भी हैं जो मुझे दिखते हैं। बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और अच्छी राय दे सकते हैं, आपको ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिकन लेबल्स जो हैं, जो लेबल्स अमेरिका में बेस्ड है, जो आर्टिस्ट अमेरिका बेस्ड है, वहाँ पे चू भी करें तो दुनिया में गूंजता है। यहाँ पे आदमी जिंदगी गा जाए अपनी तो उसके मोहल्ले तक ही सीमित रहती है। नहीं बड़ा, आप नुसरत फतेह अली खान देखो, पाकिस्तान से थे, और यूएस में और यूरोप में जहाँ पे लोगों को उसकी लैंग्वेज समझ के उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, वहाँ पे भी लोग उनके शो पैक जाते थे, और पीपल नॉट शो पैक जाते थे, पीपल हैव एंजॉयड इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। सो समवेयर इट्स नॉट ओनली एन अमेरिकन वे ऑफ पुशिंग, बट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना लगा के बैठा हूँ कि मैं इंडिया तक सीमित रहूंगा, मैं अपनी कृतियों को यहीं पे रखूंगा। बात सही है, बट क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई मतलब सिस्टम ही ऐसा है अभी फिलहाल। ऐसा मुझे लगता है कि अब देखिए इंडियन लेबल्स की का घर कैसे चल रहा है, बाहर के आर्टिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करके, यहाँ के आर्टिस्ट उनको कितना दे पा रहे हैं। पुराने लाइव शोज बोलिए, गाने बोलिए, बीटल्स अभी भी इतना बिकता है, मतलब है ना। मतलब तो मैंने इंटर्नशिप किया था 1-2 हफ्ते के लिए EMI में, म्यूजिक कंपनी। EMI था ना। तो मैं वो देख के मेरा तो अनुभव बिल्कुल ऐसा था, मुझे लगा था कि भाई म्यूजिक लेबल्स और आर्टिस्ट लोग अलग अलग रहते हैं, मतलब दिक्कतों में ही रहते हैं, एक दूसरे से लड़े भिड़े रहते हैं। क्या कुछ कॉमन ग्राउंड बन सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैंने जब जाके देखा, मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है। मुझे दिखा कि
भारत में क्या हो रहा है उसकी पकड़ किसी को नहीं है। मतलब भारत, क्योंकि हम एलियंस हैं अपने ही देश में, फॉरेनर हैं एक तरीके से। भारत इतना बड़ा देश है, हमें नहीं पता कि भारत में क्या क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि भारत में क्या होता है। म्यूजिक को अगर लेने चले तो क्या क्या हुआ है म्यूजिक में हमें पता नहीं है। अभी भी हम किसी को सरोद दिखा दो तो उसको पता नहीं, तो सरोद पूछो कि सरोद क्या है तो गायब हो जाएगा। बट आप इंडियन क्लासिकल देखो तो इट हैज इज ओन एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने EMI बोला तो HMV और EMI जॉइंटली जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा, इन लोगों के टाइटल्स रिलीज करते थे जो ग्लोबली उसमें रिसीव्ड थे। उसमें इतनी शक्ति भी है। इंडियन क्लासिकल स्प्रेड हुआ, आप देखो। तो ठीक है, बट जब बॉलीवुड आप बोलती हो तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि क्या क्लासिकल होता है, क्या फोक होता है, क्या बॉलीवुड होता है, क्या जॉनरा होता है। ये सारी चीजें में इसमें भी हम बहुत जम्बल्ड अप हैं। बॉलीवुड हम जानते हैं फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया जा रहा है वो बॉलीवुड म्यूजिक है, ठीक है, मतलब फॉर मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मान के चलते हैं। अब लेकिन वो एक यूटिलिटी बेस्ड इंडस्ट्री है कि वो फिल्म के लिए बन रहा है। लेकिन म्यूजिक में क्या हो रहा है, तो क्लासिकल क्या होता है, फोक क्या होता है। मुझे ना एक बहुत सुंदर बात कही थी एक बलिया के पत्रकार ने, बोला गीत वो होता है जो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है। तो ये संगीत ही जॉनरा है कि लोग साथ कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब साथ कहाँ हो रहे हैं, म्यूजिक कहाँ किया जा रहा है, इस पे अगर आप देखें क्लासिकल को हिंदी में मार्गी बोलते हैं और लोग को मतलब देसी बोलते हैं एक तरीके से। तो मार्गीय ये कौन तय करता है कि क्या क्लासिकल है और क्या लोक है, ये स्टेट तय करता है। कि स्टेट बोलता है कि तुम मेरे रास्ते चलो तुम्हें भगवान मिलेगा, तुम अपने अपने रास्ते चलोगे तो भटक जाओगे, या जैसा भी तुम मेरा विधान फॉलो करोगे तो कहीं बड़ी जगह जाओगे, नहीं करोगे तो। अब जो क्लासिकल म्यूजिक है वो परफॉर्म भी स्टेट प्लेसेस में किया जाता था, मंदिर हो गए या आपके महल हो गए जो भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए शब्द आपकी मजाल है, आप बात कहेंगे कुछ अपनी मन की बात कहेंगे सबके सामने महल में, है ना, राजा के सामने। तो वहां पे शब्द प्रधान नहीं स्वर प्रधान। और क्योंकि कई बार इतने वक्त तक गाना होता था तो स्वर विस्तार हुआ, रागों का विस्तार हुआ, तो गायकी वैसे बढ़ी क्लासिकल म्यूजिक की। तो क्लासिकल इज अ जॉनरा, मतलब कि वो वहां पे उसका उपयोग हुआ। लोक भी वही नींव से आता है, हिंदुस्तानी नींव से आता है, जहाँ 22 श्रुतियां बजती हैं, बस वहां पे लोगों के बीच में। और क्योंकि वो शब्द प्रधान रहा तो वहां पे उसको लोक कहा जाता है। शक्ति भारतीय स्कूल, मतलब जो भारतीय संगीत है वो एक किस्म का एक स्कूल है जो हर जगह अप्लाई करता है। अब जब से वेस्ट आया है तब से पॉलीफनी, उनका भी एक म्यूजिक हमारे म्यूजिक के साथ घुला मिला और कुछ चीजें हो रही हैं अब यहाँ पे। बॉलीवुड बोले या इंडी बोले, अब इंडिपेंडेंट क्या होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट से आते हैं पॉप पे, कि पॉप क्या होता है। कि पहले गाना जो था वो आर्टिस्ट तक सीमित था, कि आर्टिस्ट जहां वहीं पे गाना है, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, स्टूडियोज बने, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, तो कोई एक ही व्यक्ति, एक लेबल हाउस उसको सपोर्ट कर सकता था, उसको ओन कर सकता था। तो अब वो गाना ब्रॉडकास्ट उस लेबल के माध्यम से पूरी दुनिया को होता था। पॉप मतलब आर्टिस्ट से दूर चला जाता था गाना, जो अब सिर्फ आर्टिस्ट इन पॉपुलेशन चला जाता था। दैट बिकेम पॉप म्यूजिक। कि अब ये पावर कि कौन सा गाना तय किया जाएगा ये लेबल तय करता था। आज बिकॉज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए हैं, मैं नहीं बोला बहुत सस्ते हो गए, लेकिन सस्ते हो गए। वन कैन ओन एंड अफोर्ड टू हैव अ होम स्टूडियो सेटअप एंड वन हैज द पावर टू ब्रॉडकास्ट। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट कल्चर का एक प्रचलन आया है। तो इट्स अ फिनोमिनन कि मैं अब अपना म्यूजिक दुनिया भर तक पहुंचा सकता हूँ। एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट कि वर्ल्ड म्यूजिक की मतलब वर्ल्ड म्यूजिक का जो टर्म है हम बहुत वेस्टर्न की नज़र से देखते हैं। मैं जब एक बार रशिया गया था तो हम सब रशिया था, तो रशिया ने नॉन अमेरिकन आर्टिस्ट को बुलाया था। तो वहाँ पे कुछ मंगोलिया से थे, कुछ चाइना से थे, वगैरह वगैरह सब लोग थे। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही पूछे थे कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू प्ले। सिंपल क्वेश्चन होता है जो जब तक हमने एक दूसरे को सुना नहीं होता तो पूछते हैं। तो कोई बोला था मंगोलियन फोक, कोई बोला था फोक, बार बार आ रहा था, है ना। हाँ, ये बहुत वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। मतलब मैं भी जब गाँव जाके अपना म्यूजिक कर रहा था, जुबान प्रोजेक्ट जब शुरू किया, तो लोग जो शहर में बैठते थे उनको लगता था कि हाँ कविश कुछ फोक कर रहा है। मुझे बड़ी आपत्ति होती थी इस बात से। मुझे लगता था कि भाई आप
शहर में गाए बजाए तो इंडी हैं, हम गांव में गाए बजाए तो हम फोक हो गए। आप गिटार उठाएं तो ब्लूज जैज बोलेंगे, हम हारमोनियम बजाएं तो हम फोक हो गए। क्या सारे जॉनरा का जन्म अमेरिका में ही हुआ है? भारत में कोई जॉनरा नहीं है। तो कजरी, चैती, डायरो, ठुमरी, गजल, कव्वाली, ये सब क्या है? ये भी जॉनरास हैं, ये भी हमारी पहचान है। हम इनको क्यों नहीं बोल रहे? तो हम अभी ना उनके ही चपेटे में आए जा रहे हैं बार बार। इट इज वेरी, मार्केटिंग भी एग्रेसिव है, कल्चर एग्रेसिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ इट फर्स्ट कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले एक फिलिपीन बैंड से मिला था IPRS के इवेंट में, तो हम बैठे, हम इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन जो हमने वहाँ पे म्यूजिक जैमिंग किया होगा। हाँ, बहुत ही सुंदर चीज थी। ऐसा लग रहा था कि हम भारत में भी नहीं है, फिलीपीन में भी नहीं, कोई बड़ी जगह पे हैं। और मुझे लगता है ना वर्ल्ड म्यूजिक ऐसे बनेगा। और अभी हम फ्रॉम ये जो अमेरिकन, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड जो है, जो आएगा जिसमें हम एक्चुअली दुनिया को देख सकते हैं एक दूसरे को, ये तब आपका ये इंडिपेंडेंट कल्चर ही ड्राइव करेगा। और वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो ये जो टाइम्स ऑफ कोल्ड प्ले की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, दीज आर टाइम्स ऑफ यस्टरडे। अगर आप अभी देखेंगे ये फ्यूचर ट्रेंड जो अभी आपको देखने मिलेंगे। और ये भी होता है कि किसकी इकोनॉमिक पावर कैसी है और कितना सोशली प्रोग्रेसिव है, उतना ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकता है, उतना लाइवली रहता है। अमेरिका हैज बीन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, very vibrant democracy, which is why it has been very expressive, and which is why it has also had a lot of weight. Now those values are shared by the whole almost the whole world. It is connected with everybody. गांव अमेरिका के बॉस्टन से भी जुड़ा है, उसके वैल्यू से जुड़ा हो सकता है, एक्सपोज्ड है। तो वो ग्लोकल वाला जो कल्चर है वो अब आ रहा है, ऐसा है। अब इसके साथ जब आप AI देखो, so AI is coming into music and AI compose well. वो एक सैयारा करके हिंदी मूवी का एक गाना AI पे someone twisted with Kishore Kumar voice, and that version become much more popular than the original version. So how you see music in an era of AI and the artist life? मतलब इट्स एक्चुअली वेरी हेयर रेजिंग। मैंने कुछ गाने सुने थे अभी इंटरनेट पे, एंड मुझे इतना अच्छा प्रोडक्शन था, लाइक वाओ ये कौन है, एंड पता चला वो ये है। एंड बट देन कुछ चीज़ें मुझे पैटर्न्स दिखने लगे। और जैसे क्या है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, मैं फिर से इसी पे आऊँगा कि परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन। परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड होता है, तभी आप AI को सुनते तो वो एक स्टैंडर्ड मीट करता है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं होती, मतलब उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। आपको लगता है अच्छा गाना है, आप ये बोलेंगे, उसके आगे बोल के दिखाइए आप, मतलब कि इज इट मूविंग यू समवेयर, इज इट कुछ और आगे। फिर आप देखेंगे कि गानों में अभी तक कितने गानों में वो था जो गानों में होना चाहिए। तो आई थिंक AI इज एक्चुअली चैलेंजिंग आर्टिस्ट टू बी मोर जेन्युइन, टू बी मोर ह्यूमन, टू बी मोर एक्सप्रेसिव। इट हैज बीन अ वेरी कन्वीनियंट राइड अप टिल नाउ कि आप प्रोडक्शन कर चुके थे, बट नाउ यू हैव टू बी गुड एट लाइव परफॉर्मेंस, मतलब जिसको अभी गा के दिखाओ कैसा कर रहे हो, क्योंकि वो बाकी चीजें तो सब ट्वीक हो सकती हैं पोस्ट में वाली चीजें, वो तो आप पोस्ट भी क्यों करना है, AI को दे दो, AI कर देगा। स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव की जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो वो इट इज पुशिंग यू टू बी एक्सप्रेसिव नॉट परफॉर्मेटिव। AI के जमाने में हम सब लोग, अरे मतलब लोग अपने पार्टनर को कविता लिखने के लिए भी GPT को प्रॉम्प्ट देते यूज करते हैं। हाँ, मतलब ये तक तो यार हो जाना चाहिए था तुमसे, मतलब लेकिन इतना परफॉर्मेंस हो गया है। ये नहीं कि मैं कविता लिखना चाह रहा था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, यही बात कितनी ज्यादा मूव कर सकती है एक कविता के बजाय। और आई थिंक कविता में ज्यादा इंटरेस्ट है ना उनको रादर देन राइटिंग, तो वो दोनों इंटरेस्ट तो AI इज सर्विंग दैट पर्पस। ठीक है, कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग, बट इट इज पुशिंग पीपल टू बी मोर ह्यूमन, टू बी मोर एक्सप्रेसिव, टू बी मोर, क्योंकि वो एक रास्ता है जहाँ पे सामाजिक व्यवहार परफॉर्मेंस हो गई है आजकल के दौर में। हम लेकिन तब भी अकेला क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि कनेक्शन की कोई जगह नहीं है, एक्सप्रेशन की कोई जगह नहीं है, तो हम वो चीज ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग अस मूव टू दैट। प्लस आपने अभी जो आपने एक एग्जांपल दिया कि आपने हिंदी में आपकी एलुमनाई में स्पीच की और लोगों ने बोला ये कौन ऑड मैन आउट है, और फिर आप यू गेट डिस्टर्ब, और आप जब गए तब आपने एक गाना लिखा और वो गाना पॉपुलर हुआ। सो इंसान पेन से पास होता है और इंसान के इमोशंस होते हैं जो
और एआई को ये प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है, तो इंसानों के लिखे हुए गानों में जो फील होगी वो शायद एआई में तो आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। मुझे जब दिख गया था कि मुझे प्रोफेशनली म्यूजिक करना है, लेकिन पता नहीं कैसे जीऊंगा, कैसे सस्टेन करूंगा, तो मैंने वो सड़क वाली चीज़ तो करी थी, रोजी रोटी करके मैंने उसको बोला था कि जहाँ पे सड़क एक दिन पूरे बटवा छोड़ के परफॉर्मेंस करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। फिर था कि अच्छा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में कैसे मैं सस्टेन कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ नूरी वाली चीज़ से, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। मुझे था कि जिस तरीके से मैं जिया हूँ अभी तक, तो महीने के 50,000 मिल जाए तो शायद वो लाइफस्टाइल हो सकती है। जब मैं आईआईटी में था तो सोचा था म्यूजिक में अगर करूँ तो 50,000 में मैं शायद वैसे जी सकता हूँ अच्छे से। आपको तो सिटी बैंक की 15 लाख की जॉब मिल रही थी। नहीं, वो तो अलग ही बात है, लेकिन मैं म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था। लेकिन जब मैं ये क्रांतिकारी जिंदगी करके लौटा था तो मुझे 25,000 में भी निपटा लेंगे अपन, ऐसा। तो मेरे लिए था कि मंथली मुझे इतना कमाना है, कैसे कमाऊंगा। ये मैंने इसको बिल्कुल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह समझा। और अब था कि भाई वेन्यूज ही कम है, और वेन्यूज गिने चुने ब्लू फ्रॉग, हार्ड रॉक कैफे, यही सब थे। फिर मैं सुनता था कि पता चलता कि बैंड को 30,000 देते हैं, बैंड में 4 लोग हैं तो 7,500 अगर मिल रहा है तो वो भी एक महीने में, ऐसे ना हर महीने बजा रहा है वो बैंड, तो इसने कितने वेन्यूज है, तो हो भी पाएगा, इसमें क्या होगा अपना। और तो मुझे लगा था कि हाँ, तो थोड़ा सा, मैं तो गाने भी नहीं रिलीज है, तो मैं तो भी शुरू कर रहा हूँ, होगा क्या। और ये गाने तो बना रहा था मैं, लेकिन आई वाज लाइक कि किसी ने सुने कहाँ होंगे गाने, मैं तो सुनाऊंगा पहली बार, तो अब क्यों बुलाएगा कोई वेन्यू मुझे, ये सब चीज़। तो फिर मेरे एक सीनियर के साथ मैं बात करता, तो सीनियर ने बोला तू ये सब छोड़, तू मेरे घर में आके बजा, तो मैं कुछ दोस्तों को बुला लूंगा। और बोला कि अब टिकट विकेट नहीं रखेंगे, पैसे विश कर लेंगे। एंड वो इतना ज़बरदस्त था, वो 11,000 मिले थे मुझे उसमें पैसे विश में, क्योंकि म्यूज़िक की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप एक्सपीरियंस है, मतलब आप मैं नहीं कह सकता मैंने 500 का म्यूजिक सुना, 1000 का म्यूजिक सुना, 2000 का, मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक सुना, बहुत मूव किया, भाई मेरे पास ये है, मैं दे सकता हूँ, तो एज यू विश। तो मैंने ना फिर वो मॉडल इतना स्ट्रांग हो गया कि मैंने 8 गिग्स करना शुरू किया महीने में, मतलब उसी बेस पे कि अभी घर, और कोई आ जाता था तो बोलता नहीं आप मेरे यहाँ आ सकते हैं क्या, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसे करके फिर वर्ड ऑफ माउथ, मैंने अभी तक वर्ड ऑफ माउथ से ही किया है परफॉर्मेंसेस, मतलब एंड वो इतना स्ट्रांग होता है तो वर्ड ऑफ माउथ। कविश जी, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके सीनियर ने, उसने तो बस बोला कि तू मेरे बुला लिया, सब आ जाओ, हाँ, मेरे बजाओ, और सब फ्रेंड्स ने आके आपने म्यूजिक बजाया, दे ऑल एंजॉयड एंड दे पेड, एंड दैट अर्निंग वाज 11,000 rupees from that particular show, and that becomes your way of living in terms of financial earning. Yes, that is how I got confidence कि भाई मैं जी सकता हूँ, मैं सस्टेन कर सकता हूँ। मुझे 10 रुपए से लेके 50,000 मिले ऐसी घर की बैठकों में। How many such shows you used to do in a month? मैं वही कि मतलब एट वन मैक्सिमम 8 से 10 गए हैं मेरे, बट मतलब 6-4 तो चलते ही थे, एवरेज तो 4-5 4-6 होते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैंने तब ये भी समझ लिया था कि ये सिस्टम इन प्लेस हो गया है, तो व्हाई शुड आई स्टिक टू वन सिटी, आई शुड डीलोकलाइज। तो मैं डीलोकलाइज करके, और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था मुझे, बस गिटार लेके जाना था। एंड ये चीज़ फिर मैंने अलग अलग शहरों में करी, करते करते आप आपके कंपोज किए हुए गाने गाते थे? सिर्फ मेरे ही, सिर्फ मेरे। तो मैं लगभग ऐसे 85 सिटीज, टाउन्स, विलेजेस में किया। 85 cities you covered? हाँ, तो ये करते करते फिर आपको फिर एक वक्त आ जाता है कि अब आपको लोग बुलाने लग जाते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। फिर वो लेवल भी आ गया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी, मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि मैं नहीं डिपेंडेंट हो सकता हूँ कि इवेंट ऑर्गेनाइजर की वो मुझे बुलाएगा तब जाके मेरे घर, मतलब मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे अपना सीन बना लेना है पहले ही। तभी मैं उस स्पेस में था कि मैं हर शहर जाऊंगा, हर गांव जाऊंगा, अपने आप से जाऊंगा, मेरे पास हफ्ता खाली मैं जाऊंगा ना हफ्ते में, तो वहाँ पे इकोसिस्टम का पार्ट बनूंगा और इकोसिस्टम का पार्ट परफॉर्म करूंगा। तो आज मेरे पास, जैसे मैं 85 बोल रहा हूँ, तो मेरे पास 85 सिटी, टाउन, विलेजेस हैं कि अगर मेरे पास 1-2 महीने अगर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कुछ होते हुए, तो मैं जाके अपना टूर प्लान करूँ और वहां पे आप जाके बजाओगे, और वो इकोसिस्टम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि और फाइनेंशियल नीड वुड बी टेकन केयर। हाँ, और ये मैं बता रहा हूँ कि 2023 तक मैंने ऐसे ही किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा कोई गाना रिलीज नहीं था मेरे, लेकिन लोगों ने सुने थे, तो सुन के वर्ड ऑफ माउथ से होता था। फिर मैंने अभी उसके बाद सिर्फ 2-3 गाने ही रिलीज कर पाया हूँ मैं,
अभी तक। मतलब मेरा जो कन्वेंशनल रूट होता है आर्टिस्ट का कि भाई हम रिलीज करेंगे फिर जाके हमारा करियर शुरू होगा, वो तो ये बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। और मुझे ये बहुत बड़ा वजन भी है मेरे जहन में इस बात को लेके कि मैं वहाँ पे वो क्यों नहीं कर रहा हूँ इतनी तेज, क्योंकि वो एकदम जंप स्टार्ट करता है। लेकिन उसके बजाय ये जो बुनियादी चीज़ जो बन गई इस वजह से, ये इसने मुझे बहुत हिम्मत दी है। और ये मैं जब IIT में ही था, जब मैं देखता था तो मैं परखता था कि ये सीन में जब अगर प्रोफेशनली जाऊंगा तो क्या होगा, हाउ विल माई इकोनॉमिक्स, मतलब हाउ विल माई फाइनेंसेस लुक, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक आर्टिस्ट को अक्सर ना हल्ले में होश खो देता है अपना। जब बहुत सारे लोग चीयर करते हैं तो आप लगता है हो गया, अब तो मेरा पार हो गया। नहीं यार, आप किक करके आइए, घर अकेले लौटेंगे आप, और घर अलग होता है वो फील, थ्रिल अलग हाँ, होता फिर है। अगले 2-3 दिन कैसे बीतेंगे आपके, है ना। तो मतलब वो सेंटर्डनेस आ जाती है धीरे धीरे, आपको समझ में आता है कि ये फिगर्स हैं, आई हैव टू मीट देम। कोक स्टूडियो कैसे इवॉल्व हुआ? जैसे आप कोक स्टूडियो जहाँ पे श्रेया घोषाल और वहाँ पे आप लोगों ने साथ में एक कंपोज करके यू प्लेड विथ इन कोक स्टूडियो आल्सो, सो हाउ दिस थिंग कोक स्टूडियो वाज वेरी इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। हाउ इट इवॉल्व, वो कैसे आपका इवॉल्व हुआ? कनिष्क इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो मेरा छोटा भाई है, उसको ही वाज आल्सो साइंड विद लेबल, तो उसका रूट बहुत अलग है, मेरा रूट बहुत अलग है। लेकिन तो कनिष्क के पास जब एक स्वानंद किरकिरे जी का गाना आया था तो कनिष्क बैठा था स्टूडियो में एंड मुझे सुनाया उसने, और फिर बोला कि आप कुछ देखोगे नूरी पे। तो अभी क्या था कि जस्ट बहुत तो मैंने उसी वक्त एक चीज़ कंपोज कर दी और वो पहुंच गई वहाँ पे। और फिर उसके जो ऊपर हैं, जो उनके KJ सर, अंकुर तिवारी और ये सब लोग हैं, इन लोगों ने सुना एंड देवर, इनके सबके इनपुट्स थे अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को लेके कि वो सितार को चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ चाहिए। ये तो ऐसा है कि आप कर देते हो और फिर उन लोगों पे है कि इनको रखना है नहीं रखना है, जो भी चीज़ है। एंड उनको आइडिया अच्छा लगा, नूरी का भी आइडिया अच्छा लगा, कंपोज पीस भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने तो इट वेंट ऑन। एंड प्लस नूरी स्टैंड्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। So that what we were talking कि how नूरी evolved। Yes. आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और मैं गिटार बजा रहा था और गिटार पे अपना एक गाना गा रहा था। तो एक चाचा है, उन्होंने लगे क्या है बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, मतलब इंडियन बजाया करो। अब ऐसे कोई भी बोल के चला जाए ट्रेन सफर में, आपको लग जाती है बात में लगी भी डांट के चला गया कि क्या बोल के गया है। फिर मैं सोचने लगा कि बात तो ठीक है, मतलब कोई फॉरेनर आएगा देखेगा मुझे गिटार पे गाना गाते हो, वो भी यही बोलेगा कि ये सब तो हमारा दिया हुआ है। हिंदुस्तानी को तो क्लासिकल ही मानेंगे या सितार सरोद बजे तभी क्लासिकल। और मैंने कहा तो यार कैसे मैं अब शास्त्रीय संगीत कैसे सीखूं, मतलब गिटार से मेरा जो आधार ही मेरा एक्सप्रेशन, और क्लासिकल म्यूजिक की छवि भी अच्छी नहीं थी मेरे दिमाग में। मतलब क्लासिकल म्यूजिक सीखो, IIT खत्म हुआ बड़ी मुश्किल से, अब जाके एक और स्कूल पकड़ो, किसी को गुरु बनाओ। और मुझे गुरु लगता था कि हर गुरु घंटाल होता है, गुरु बनाओगे तो उसको स्कूटी से घुमाओ, उसकी बेटी की शादी में फूल लगाओ, ये बतेरी प्रक्रियाएं करो। देखा होगा, सही है। हाँ, बोला था कि हाँ, मेरे दोस्त के साथ हुआ था बनारस में, स्पेनिश बंदा था, तो मैंने बोला था BHU में परफॉर्मेंस थी हमारी, मैंने बोला तो आएगा परफॉर्म करने सरोद पे, तो बोला नहीं आई हैव टू गो टू, स्पेनिश था तो बोलते आई हैव टू गो टू गाजीपुर, मेरे गुरुजी की बेटी की शादी है। अच्छा। तो मतलब तू परफॉर्मेंस छोड़ेगा क्या इसके लिए, लेकिन गुरुजी अलाउ नहीं करेंगे। तो वहां से आपने इंडियन बनाने का, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं एक भारतीय एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी भारतीय नींव हो और गिटार जैसी एबिलिटीज भी हो बना सकता हूँ क्या। और फिर मुझे लगा क्यों नहीं बना सकता हूँ भाई, मेरी डिग्री क्या काम आएगी, मतलब मेरी नॉलेज किस वक्त काम आएगी। तो मुझे काफी लोग मुझे पूछते हैं कि IIT की डिग्री व्यर्थ गई क्या, मतलब तो कुछ व्यर्थ नहीं जाता है, हर ज्ञान काम आता है। इनफैक्ट इनोवेशंस हैपन एट इंटरसेक्शंस, तो इंटरसेक्शंस ऑफ फील्ड्स। तो मेरी वो एक सर्टेन जो फील्ड्स थी जिसमें मैं इन्वॉल्व था, उसी वजह से ये बनी नूरी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन वो उस वक्त बनना शुरू हुई मेरे दिमाग में और मटीरियली, बिकॉज आई वॉज केपेबल, आई वॉज एबल। मुझे उन दोनों फील्ड्स में मैं था। तो तब जाके मुझे रबाब बहुत पसंद था, तो मुझे एक रबाबिया जो रबाब बनाते हैं उनके पास गया और मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसा कुछ बनाना है, कैसे करूं। निज़ाम जी करके थे वो दिल्ली में, तो विलायत खान साहब के लिए सितार बनाते थे, ही वाज अ वेरी गुड लिथर।
तो तब उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ गिटार पे, तो ब्रिज के नीचे जैसे हमने चमड़ा लगा दिया एंड उन्होंने बोला कि लगा के देख बदल जाएगी आवाज़। अच्छा, तो वुड स्किन। हाँ, तो लोगों को लगता है कि गिटार की आवाज़ उसके अकूस्टिक होल से आती है, जबकि नहीं होता ऐसा। मतलब उसकी आवाज़ उसके साउंड बोर्ड से आती है, जो ऊपर की जो प्लेट होती है वो उसका टिम्बर डिसाइड करता है। म्यूजिक बॉक्स के ऊपर जो आता है, जो लकड़ा होता है ऊपर, हाँ, तो जो भी ऊपर वाला वो साउंड प्रोजेक्ट कर रहा होता है, वो वाइब्रेट कर रहा होता है ब्रिज। तो तार वाइब्रेट करता है, तार के वाइब्रेशंस को ब्रिज करने वाला ब्रिज होता है जो साउंड बोर्ड करता है, साउंड बोर्ड वाइब्रेट करता है। अकूस्टिक होल बेसिकली हेल्महोल्ट्ज फ्रीक्वेंसी करके एक फिनोमेना है, तो वो बेस एक्सेंचुएट करता है बस, तो उसका बेस रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो आप देखिए ना, तानपुरा में नहीं होता है अकूस्टिक होल, लेकिन तानपुरा तो आवाज़ दे रहा है। सरोद में नहीं होता है, सरोद भी दे रहा है, सितार में भी नहीं होता है। तो इट इज मतलब ऐसे फिर मुझे समझ में आया कि भाई हमें इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं ये भी नहीं पता है। और फिर जब जिस पे नूरी पे काम करना शुरू किया तो देखा कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट मेकिंग को तो लावारिस छोड़ दिया गया, कि मतलब सीन में तो वहाँ पे जो आर्टिजन्स हैं जो बना रहे हैं वो भी पारिवारिक पद्धति से बना रहे हैं। तो 3 नूरी मैंने बनवाई, एक दिल्ली में, 2 मेरठ में, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे कितनी सारी चीज़ें करनी थी जो वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको। और इसके लिए एक्सपेंसेस आपने खुद किए? खुद किया, पहले वाले मैंने खुद किए। दूसरे तीसरे में मुझे IFA से ग्रांट मिला, इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स बैंगलोर में। तो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि उससे मुझे अनुराग गुप्ता सर जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं उनसे भी मिलना हुआ। फिर हमने जो ये 4th नूरी बनी है उसका रिसर्च हमने IIT कानपुर में शुरू किया। लाइक पहली बार इंडियन इंस्ट्रूमेंट की अकूस्टिक मॉडलिंग हो रही है। आप देखिए कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे रिसर्च ही नहीं हुई ढंग से। CV रमन ने करी थी 1912 में कि तबला क्यों ऐसे बजता है। फिर 2014 या 16 में अनुराग गुप्ता ने बताया कि तानपुरा ऐसे क्यों बजता है। उसमें भी 4 तार होते हैं, गिटार में भी तार ही होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बट द साउंड, कि तानपुरा में ऐसी आवाज़ क्यों आती है, लेकिन गिटार में नहीं आ रही ऐसी। तो ये ऐसा, व्हाट इज दैट फिजिकल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग। एंड ये 6000 साल पुराना फिनोमेनन है जवारी वाला, जो कभी एक तंत्री वीणा में था, फिर एक तंत्री वीणा से तानपुरा बनी जब पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, उनका तंबूर जब तानपुरा बना एक तंत्री वीणा से मिलके। तो हमें पता ही नहीं है, और कोई क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहा है इन सब चीज़ों पे। तो बिल्कुल, तो कहाँ से इंस्ट्रूमेंट इनोवेशन होगा, कहाँ हो गया। और उनकी हालत भी हमें लगता है कि पता नहीं कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था कविश तुझे एक बनानी पड़ेगी नूरी खुद, तब जाके बढ़त होगी। तो ये वाली नूरी बनाई गई। सो नूरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो नूरी वैसे कहने के लिए क्योंकि मैंने जब ज़ुबान प्रोजेक्ट शुरू किया था तो आई वाज कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। मैं गिटार लेके जा रहा था भारत के भीतर। तो जब मैं बनारस पहुंचा तो मैं एक सरोदिया से मिला, और मज़े की बात वो सरोदिया स्पेनिश था और मैं हिंदुस्तानी होके गिटार पकड़े बैठा था, और वो हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा था, हाँ, जो स्पेनिश था। हाँ, बढ़िया। और जब उसने जब बजाना शुरू किया मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला इतना पावरफुल कैसे इंस्ट्रूमेंट ये, मेरा गिटार एकदम से फीका सा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे इतनी शर्म हो रही थी, पहली बात तो मैं गिटार पकड़ा हूँ, दूसरी चीज़ की ये अपना इंस्ट्रूमेंट इतना मैंने कभी इतने करीब से नहीं देखा था। हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट वो तो आपने सुने होते हैं रेडियो पे वगैरह, हाँ ठीक है टाइप चल रहा है, बट ये तो बहुत ही पावरफुल था। और फिर मुझे लगा कि ये कमी क्या है। तो ये चीज़ ने भी मेरे नूरी शोध में हाँ हेल्प किया। और फिर मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूज़िक क्या है, मतलब जब राग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर मैं थोड़ी फिजिक्स बोल सकता हूँ तो वेस्टर्न म्यूज़िक में पोस्ट बाक एरा में टेम्परामेंट इक्वल टेम्पर्ड सिस्टम शुरू किया गया था, कि वो जो सिर्फ एक कंपोज़र के लिए था, कि वो कंपोज़र इसको पियानो या ऑर्गन में यूज़ करेगा ताकि वो सिम्फनी बजा सके, कई सारे कॉर्ड्स बजा सके, और फिर उसको ऑर्केस्ट्रा प्ले करे। तो सारे गामा सागा पा कुछ भी जो भी कॉर्ड है वो एक सिम्फनी में बजाएगा, ऑर्केस्ट्रा में बजाएगा, ये लिखेगा। तो इक्वल टेम्पर्ड स्केल वाज एन एडजस्टमेंट डन ऑन द एक्चुअल हार्मोनिक म्यूजिकल नोट्स। क्या है कि क्योंकि वेस्टर्न टेम्परामेंट में स्वरों का रिश्ता जो है वो 2:1/12 के रेशियो से होता है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, और एक इर्रेशनल रिलेशनशिप है, मतलब वो अनहार्मोनिक है। हार्मोनिक रिलेशनशिप था फ्रैक्शनल इन नेचर। तो हिंदुस्तानी में वो हार्मोनिक है, तभी वो स्वर ज़्यादा वजनदार है। हिंदुस्तानी जब बजते हैं तो वो एकदम से आपको पकड़ लेते हैं, और वेस्टर्न में
वो पूरा हार्मनी स्वेल सुनाई देता है। अगर आप उसको सिर्फ एक मोनोफोनिक में सुनो, मतलब rather than instrument is हाँ। combination of instruments with all different notes. हाँ, तो वेस्टर्न म्यूजिक की ये बहुत बड़ी देन है दुनिया को कि उन्होंने पॉलीफोनी दिया है, लेकिन उन्होंने एक एडजस्ट मतलब उनको सफर करना पड़ा बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द नोट, मतलब हार्मनी कंटेंट चला गया और हिंदुस्तानी में बहुत स्ट्रांग है। तो अब मुझे लगा था कि गिटार भी काबिल नहीं, सरोद में कॉर्ड नहीं बज सकता, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सब म्यूजिक बजा सके। अब मैं बीच में इजराइल भी गया था एक कॉन्सर्ट के लिए, तो वहाँ मैं तुर्की आर्टिस्ट से मिला और तुर्की तेल अवीव में आपने एक कंसर्ट किया। तो मैं जब तुर्की आर्टिस्ट से मिला तो मैंने तुर्की म्यूजिक के बारे में जाना। फिर मैं मेरे एक मेंटर जैसे बने जो पर्शियन ईरानियन वायलिनिस्ट हैं, तो उन्होंने दास्तगॉह सिस्टम मुझे बताया। तो मुझे देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स एक सर्टेन म्यूजिक को बजाने के लिए बनते हैं, वही जबान बोलते हैं लेकिन एक दूसरे की जबान नहीं बोलते। जैसे वो एक दास्तगॉह बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तानी नहीं जानेगा, हिंदुस्तानी वाला वेस्टर्न नहीं जानेगा, ये सब है। तो क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो वर्ल्ड कोलैबोरेशंस को मतलब फैसिलिटेट करे? ऐसा नहीं कि हाँ हम तो ये हैं और तुम वो वाली चीज़, और फिर साथ में बैठते हैं, हमें लगता है कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बैठता हुआ नहीं है। मतलब लोग बैठ जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, एक साथ हो नहीं पाते। तो नूरी में इसी चीज़ को एनविजन करते हुए बनाया गया कि ये एक वर्ल्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो ये उसका लॉन्ग टर्म विजन है। इसका शॉर्ट टर्म विजन शुरू यहीं से हुआ था कि गिटार जैसी एबिलिटी हो और हिंदुस्तानी नहीं हो और रबाब जैसा हो। धीरे धीरे करके इसमें इतनी काबिलियत बढ़ने लगी है कि अब ये उस तरफ बढ़ रहा है। और ये जो फोर्थ नूरी जो बनी गई है, इसमें आप सरोद, रबाब, ऊद, इवन कुछ नए स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है जो अब बन रहे हैं इसमें बजाने की। इसमें आप 3 ओरिएंटेशन है जिसको लेके बजा सकते हैं। ऐसे बजा सकते हैं, जिसको लिटा के बजा सकते हैं, खड़े होके बजा सकते हैं। इसमें स्वर मंडल, हार्प वाला सिस्टम भी है, तंबूर जैसा भी है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोच के बनाया है कि इसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्या बने। मैंने तो ये सोच के बनाया था कि मानो अगर मुझे गाना हो एक राग में तो लेटा के मैं तरफ को, रेजोनेंट स्ट्रिंग्स को बढ़ा दूं ताकि मैं उनको वैसे यूज़ करूँ। मैं डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छी क्लियरली आएगा। इसकी ट्यूनिंग पहले डबल ड्रॉप डी गिटार जैसी थी ताकि मैं कॉर्ड्स वैसे बजाऊं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि राग बजाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंडियन जैसे अभी है सापा सापा सामा, ऐसा है जैसे, तो सा पा सा पा सा मा। तो ये इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानी में जो स्वर अचल हैं मतलब वो सापा मा है, और बाकी धा रे गा धा नी ये मूव करते रहते हैं रागों के हिसाब से। तो क्योंकि वो मूव कर देते हैं तो इंटोनेशन की प्रॉब्लम्स आती है। अगर मैं डी को, गिटार के डी स्ट्रिंग को सा मानूं तो नीचे वाला भले माँ हो जाएगा, जी स्ट्रिंग माँ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वाली बी स्ट्रिंग धा हो जाती है और धा दिक्कत देने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस ट्यूनिंग में कॉर्ड शेप्स बहुत अलग हो जाते हैं। जैसे ये डी मेजर हो गया, वो में ही डी मेजर हो गया आपका। हाँ, ये आपके डी मेजर, और आपको ये माइनर बजाना है तो अगर आप जी बजाना तो आप एक रॉक रिदम से फिर आप इंडियन क्लासिकल में शिफ्ट हो जाओ। तो क्या हम तो चेक कर पाएंगे? तो जैसे अगर आपका आपको सरोद बजाना है तो ये सरोद हो गया। अगर मैं जिसको रबाब अंग में बजाना है तो ये पहला पोर्शन आपका गिटार की तरह बिहेव करता है, जो ऊपर फ्रेट बोर्ड जैसा आपने एक्सटेंड कर लिया है। ये तो एक्चुअली अब हो गया, क्योंकि पिछली नूरीज में क्या होता था कि ये जो तरफ के तार है, रेजोनेंट स्ट्रिंग्स है, ये अंदर से जाके ऊपर टाइटन होते थे, लेकिन इसमें मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो जैसे इसको अगर बजाना है तो ये इसका सेकंड ओरिएंटेशन है बजाने का नूरी का। तो ये भी बहुत ही शानदार, इस चीज़ के वजह से इसको शेप मिल गया नूरी को, बहुत ही डेफिनेट जो फ्रेट बोर्ड है इसका
ये है कि यूजुअली रेजोनेंट स्ट्रिंग्स हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट बजते नहीं है, वो खुद ही मतलब खुद ही बजते हैं, वो सुन के बजते हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं, क्योंकि वो राग में ट्यून होते हैं, तो मैं खुद उनको बजा सकूँ। कश्मीरी साउंड भी आता है। हाँ, जैसे आपको भी, तो इसमें आप कोई भी जिस राग में भी गाना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो गाने के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको किसी भी राग भी साथ में दो तो अच्छा रहेगा। हाँ प्लीज ना। दिमाग की गिरफ्त में है दिल मेरा, है दिल मेरा, कैसे निजात पाएगा, कैसे निजात पाएगा ये दिल मेरा, ये दिल मेरा। सारी तरकीबें दिमाग की है, कैसे कोई काम आएगी, सारी तरकीबें दिमाग की है, कैसे कोई काम आएगी, बंद बाहों का ये जोर है, सीने पे सलाखें सी हैं, कोई ने खोल दे, कोई बाहें खोल दे, कैसे निजात पाएगा, कैसे निजात पाएगा ये दिल मेरा, ये दिल मेरा। वंडरफुल। तो इसको आप ऐसे बैठ के गा सकते हैं और फिर इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं। अच्छा, ये प्लेक्ट्रम की जगह पे बड़ा वाला है क्या? ये कोकोनट से बनता है। अच्छा, आपने बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये मिल जाता है, सरोद का है ये। सरोद का है? अच्छा। हाँ, तो ये दिस इज मच मच बेटर देन, मच हेवियर देन गिटार। तो मैंने आपको सरोद अंग दिखाया, मैं आपको थोड़ा सा अरेबिक अंग दिखाता हूँ। तो जैसे अरेबिक में स्वर ही अलग यूज किए जाते हैं।
माउंटेनियरिंग वाला फील आता है आपको? हाँ, तो जैसे इसमें अरबिक म्यूजिक में जो स्वर यूज किए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे ये तो हम लोग कुछ स्केल आते थे, अरेबिक स्केल आता था। हाँ मतलब नहीं, तो जैसे अरेबिक जैसे हिंदुस्तानी में या वेस्टर्न में अगर ये सा है तो ये कोमल रे हो गया, शुद्ध रे। अब इसके बीच का जो स्वर है जो ना हिंदुस्तानी में ना वेस्टर्न में अरबिक में वो है। तो वहां से वो फील चेंज करता है। हाँ। वो नोट। इसको मैं बजा सकता हूँ हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बहुत ही अच्छा साउंड करता है ये। तो ये 6 स्ट्रिंग आपके गिटार वाले ही हो गए। हाँ, ये गिटार जैसे ऊपर के। अच्छा, मैं स्ट्रिंग को जो बजा रहा हूँ प्लेक्ट्रम कहीं ठीक है, वो तो होता है धीरे धीरे। ये ट्यूनिंग एक डाउन है, ई हाँ हाँ हाँ, ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है उस ट्यूनिंग में। ये हिंदुस्तानी वाले लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, जो सरोद बजाते हैं, रबाब बजाते हैं। और ये साउंड जो आ रहा है वो साउंड चमड़े की वजह स्किन से। के कारण आ रहा है। सो बेसिकली ट्रैवल्स विद इन द म्यूजिक बॉक्स एंड इट कम्स अप। तो स्ट्रिंग को अब जैसे वाइब्रेट करते हैं, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन ब्रिज से इसको मूव कराती है। ओके, और इसमें आपने आपका इंजीनियरिंग नॉलेज या आईआईटी वाला नॉलेज भी थोड़ा यूज किया होगा। वो तो करते हैं, जितनी नॉलेज अवेलेबल उतनी तो करेंगे हम। हाँ, तो इट हेल्प्ड यू? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा। एंड इट हैज जस्ट बिगन। It has just begun. Yes, So this is the 4th version of Nuri. yes, this is the And fourth. how many more you feel probably you required before it really become a global instrument? नहीं, तो अभी हम जैसे 15 नूरी बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग फ्रॉम जैसे डिजाइन टू प्रोडक्शन, हम प्री प्रोडक्शन फेज में। तो हम एक स्टैंडर्ड पे आना चाहते हैं। But will it be a machine cut or handmade? वील सी, मतलब देखते हैं क्या होता है। कि मुझे लगता है कि हाथ की ज़रूरत है, और सब मेजर वर्क कुड हैपन मशीन से। और ये वुड कहाँ से लाओगे आप? ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो सागवान है, टीक है, ये टीक वुड, ये पर्पल हार्ट वुड है, ये एबनी है, इसमें महागनी भी है। तो वो देखेंगे कि अब And will it be a one wood product or joints? देखते हैं। अच्छा, दैट नीड्स टू बी सीन कि Understood. व्हाट। जैसे एक बहुत सुंदर बात है हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि ये हमने जैसे ल्यूट प्रोसेस बोलते हैं, तो हाफ ल्यूट प्रोसेस से बनाया। तो ल्यूट जैसे ऊद हो गई इज वन ल्यूट। ऐसे यूरोप में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो जैसे ल्यूट में ये होता है, बोल बैक होता है। हाँ, लग रहा है वो। हाँ, तो ये पट्टियां हैं सागवान की, जो हमने joints. काट के स्टीम बेंडिंग से ओवर मोल्ड बना के बनाया ये फ्रेम। और उसके बाद में ये CNC मिलिंग कराई हमने। पहले राइनो पे डिजाइन किया। वो पोर्शन तो इजी है, बट ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट है नीचे वाला। हाँ, तो लेकिन क्या इसमें बहुत सी जॉइनरीज हैं, है ना। तो एक बीच की जॉइनरी है ये, और फिर थर्ड ये जॉइनरी है। अब क्या होता है कि वेस्ट बहुत एडिटिव अप्रोच यूज़ करता है, इंडिया सब्ट्रैक्टिव रखता है। मतलब इंडिया ने एक लकड़े से काट के बना दिया, पूरा सरोद बना दिया टाइप्स। तो मैंने जब इसको हम रिसर्च कर रहे थे इस पर, तो हमने फिगर आउट किया कि इसके कुछ फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं जो आगे जाके जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो टूटेंगे। तो फिर जब तब रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में क्यों नेगेटिव यूज़ किया जाता है तरीका। मतलब क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन इंडियन प्रैक्टिसेस, लेकिन हमें पता नहीं है We क्यों। do not know. तो जब यूज करोगे तो समझ में आता है आपको क्यों ऐसा किया है। हाँ, इंडिया में वेदर बहुत चेंज होता है, बहुत वेदर चेंज होता है। तो जितने जॉइनरीज होंगे उतना Joints खुलते disorder। रहेंगे, बंद होते रहेंगे, हाँ। खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे। Then it long term it would be correct. हाँ, तो उतनी इंट्रोपी बड़ी है, तो उतना डिसऑर्डर होगा। तो हमें चाहिए कि जितना कम इंट्रोपी हो, तो वन सिस्टम पूरा एक लकड़ा हो तो बेहतर होगा। तो वो सिस्टम अभी हम ट्राई करेंगे इस नूरी पे कि वन ब्लॉक ऑफ वुड से जितना बन सकता है। तो दैट विल बी वेरी मच कार्व्ड। एक रही तो carving you would oriented। have a easy, तो मशीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, easy हो उसमें। जाएगा। हाँ। Machining easy। देखते हैं। लेकिन क्या मैंने देखा था कि जब हम ये बना रहे थे कि जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया था, द हार्ड पार्ट केम लेटर ऑन, विच इज़ एक्चुअली हाथ का काम। तो मतलब बगैर उसके नहीं हो सकता। ये सब ये जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्स लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, ब्रिज की लोकेशन क्या होगी, ये अगर नहीं पता हो आपको या इसका कोई इल्म ना हो आपको, तो आप खो जाएंगे। आपके लिए लकड़ा ही रहेगा वो। और जितनी स्ट्रिंग्स आपकी बढ़ती है उतना आपका बैलेंसिंग बढ़ता है ना। कम स्ट्रिंग से इज रिलेटिवली इजी टू बैलेंस द इंस्ट्रूमेंट। अब आप देखिए कितनी आपने बनाई है, बट आई अंडरस्टैंड कि इट्स बीन 2 पार्ट, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला है, तो दिख रहा है। नहीं, वेरी गुड, वंडरफुल, एंड इट साउंड्स रियली गुड, एंड कांग्रेचुलेशन फॉर सच एन अमेजिंग इन्वेंशन।
and hope you take it further. So thanks a lot for coming on Life Unscripted. We Wellspun as an organization, we are really thankful to you, and we wish you success. Wherever you feel Wellspun World can do anything for you, Noori, we'll be more than happy to do that. Right? Thanks a lot. Thank you for your time. Thank you.